आमी सध्या आसा 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आनी हांगासर आमच्या वांगडा वेगवेगळ्या मानेस्तां कडेन आमी उलयतात. आमच्या वांगडा आयज अशेच एक मानेस्त आसा, रिशिता भट. मॅम, वेलकम टू आवर शो. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू गोवा एंड हाऊ इट्स फीलिंग इन गोवा. Goa is very supportive, especially with IFFI. Being on the steering committee again this year, I always feel that Goa has been super supportive. The vibes are nice, the participation is fantastic, location is so beautiful, and we all love Goa. The international guests love Goa, and it's been so far so good, very special because we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Your career has been almost 21 years. You started from Ashoka film. How do you see the evolution of Indian films? Well, evolution of Indian films has been large and magnanimous globally, and I think India is the content hub, and soon it's going to become one of the largest filmmaking countries. Also, now the OTT platforms, you have also been part of OTT platform. So, what are the differences you see in the films and the OTT platforms? Well, there's a lot of content. India is a content hub, like we are saying, and under the initiative taken by Honorable Minister and Honorable Prime Minister, that's what has begun. And we are having so much content from various, and Indian cinema is so varied. We have languages, there are different languages, different OTT platforms. So I think there is no looking back for India to become, and which already is the largest content hub. Thank you, ma'am. Thank you. I'm Tyra Kashyap Khurana. It's a pleasure to be a part of IFFI, and I had come down for a session for Film Bazaar, and we spoke about how books can be adapted into screenplays. And one of the most brilliant examples of recent times for me is Jojo Rabbit, and it's adapted from a book called Caging Skies. Watch the movie, read the book, you'll enjoy both the mediums. Thank you. Kashmir Files is a film for the world. For me, it's an emotion, it's a feeling. It's something, a truth of the genocide of Kashmiri Pandits, which was unnoticed for 32 years. And finally, Vivek Agnihotri, Abhishek, and myself, we came out with this film. And the fact that film has done phenomenal business commercially also, at least the truth reached out to the world. When I say commercially also done, that means it touched somebody. It made people think about it. And also, people were guilty that they did not know about this story of the genocide of Kashmiri Hindus. And I'm very happy to be here that it's the panorama selection of IFFI. It's nice to be here, and let's hope that the film goes off well. So one more question for you. You're such a brilliant actor. What is your method for getting into the skin of your characters, especially this one? There is no alternate to honesty, whether on screen or in real life. If you're honest to the character, sometimes the honesty touches people, whether you are honest being a comic actor or a serious actor or anything. But in this film, I was representing those 500,000 people who had to leave their homes on the 19th of January 1990, all of a sudden in one night. And I was representing them. And that had to be done with my soul, not with my craft. So I will say that Kashmir Files, I did not use craft as an actor. I used my soul, my real tears and my bleeding heart. मैं यहाँ पर आया हूँ IFFI के लिए, रेड कार्पेट के लिए, कश्मीर फाइल्स के लिए, जिसको लोगों से बहुत प्यार मिला, लोगों से बहुत सेंसिटिविटी मिली। जो भी हमने आज अनवेलिंग कराया है सिग्नेचर, ये मूल भाषा इसकी हिंदी है, अगर इसका टाइटल सिग्नेचर इंग्लिश में है। बहुत ही मर्मी है, कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। गजेंद्र अहीर है, बहुत वेल नोन मराठी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, और मैं हमारी कंपनी भी स्टूडियो भी साथ में बुगाड़िया साथ में काम किए FFI के साथ, और आएगी बस कुछ दिनों में आपको उनको देखने को मिलेगा। कश्मीर फाइल के बारे में क्या कहूँ? इंडियन फिल्मों में कश्मीर फाइल्स दिखाया जा रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कश्मीर फाइल आधुनिक भारत के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। ये बल्कि कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविकता है, जिसको विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत ही सेंसिटिविटी से डायरेक्ट किया है और सच्चाई
एक ही रीज़न है, क्योंकि कभी कभी सच्चाई दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। और मुझे बड़ा गर्व है कि आज ये फिल्म यहाँ पर डेलीगेट्स को दिखाई जाएगी, इंटरनेशनल ऑडियंसेस को दिखाई जाएगी। और गोवा फिल्म फेस्टिवल जो है दिन दिहाड़े रात चौगनी तरक्की कर रहा है और दुनिया में पहुँच रहा है, और 2 साल बाद फिजिकल उस पर हो रहा है। तो इट्स वेरी वेरी ग्रेट मोमेंट। बहुत कंट्रोवर्सी भी रही फिल्म की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ऐसी कोई चीज़ है दुनिया में आज तक जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं है? आपने नीले रंग की शर्ट पहनी है, 5 लोग आपको बोलेंगे ले सफ़ेद पहन सकते थे। तो ऐसा कंट्रोवर्सी से कुछ डरने का नहीं है। जो सच है उसमें कंट्रोवर्सी हो तो उससे डरने का नहीं, और झूठ हो तो उसको ठीक करने का। सर, गोवा और इसी के बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हमने एक इंटरनेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल गोवा के साथ जुड़ गया है। नाम इट्स कॉल्ड इफ़ी गोवा, जो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया गया है, और गोवा इज़ द राइट डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल सिनेमा, बिकॉज इट्स ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कल्चर्स। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, और बस अच्छा है। थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चालू है, आज मास्टर क्लास हुई। एक बात जो आपने कही थी वो बहुत मतलब, एक एक्टर को कितना संवेदनशील होना चाहिए समाज के प्रति, क्या लगता है इसका? समाज हाँ, सेंसिटिव कितना होना चाहिए? मैं ये वाली बात हुई थी क्या? नहीं, आपने जब बोला कि एक्टर किसी भी पानी जैसे होता है, कुछ भी जैसे होता है, तो ये संवेदनशील होना ज़रूरी है, होता है क्या? सभी होते हैं संवेदनशील, तो आई थिंक एक्टर भी होता है। एक्टर को तो और भी होना चाहिए, स्पेशली इंसान के लिए, नॉट सोसाइटी और नॉट सम अदर थिंग, बट इंसान के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैं इंपॉर्टेंट हूँ जितना ये इंपॉर्टेंट है। इस मामले में सेंसिटिव होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए सेंसिटिव। सर, आपने सत्यदेव दुबे सर के साथ भी काम किया, उनकी एक अलग प्रक्रिया थी काम करने की, बहुत एक अलग तरीके से वो रेडी करते थे अपना थिएटर। आपको क्या लगता है कि हर एक डायरेक्टर की अपनी एक प्रक्रिया होती है, या फिर नाट्यशास्त्र हाँ उनके हिसाब से ही चलना जरूरी है? नाट्यशास्त्र तो बहुत रिच था यार, वो तो इतना रिच है कि हम उसके हिसाब से तो आज चलेंगे ना तो वर्ल्ड में सिर्फ हमारा सिनेमा होगा। इतना रिच है नाट्यशास्त्र। 36 प्रकार के तो अभिनय हैं, सिर्फ आँख के बताए हैं, यू नो। और मतलब मॉडर्न टाइम में भी इतना मतलब मेथड एक्टिंग है वो तो नाट्यशास्त्र में है सेम। तुम एक्टर हो क्या, हीरो हो क्या, तुम एक्टर हो क्या, ये परिभाषा कैसे बदली गैंग्स के बाद और गैंग्स के समय, क्योंकि सडनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की चर्चा होने लगी और लोग नोटिस करने लगे कि एक व्यक्ति है, एक एक्टर है, कमाल का है, अद्भुत काम कर रहा है और उसका नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। ये परिभाषा कैसे बदली? जैसे आपने कहा कि एक्टर हो गए, वो तो मुझे खुद पता नहीं, ट्राई कर सकते हैं, यू नो, कंप्लीट तो हो नहीं पाते या एक्टर। हाँ, मेरा जो पेशा है वो एक्टिंग का है, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं एक्टर हूँ। बट एक हमेशा खोज रहती है कि कुछ ना कुछ तो खोजते रहते हैं। बट हाँ, गैंग्स के बाद ये होने लगा था कि खुद की चीज़ों पे बिलीव होने लगा था कि अगर आप कोई भी चीज़ लेके आते हैं लेकिन आपकी अपनी है, ओरिजिनल है और उस पर आपका बिलीव है, तो वो आदमी तो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 30 साल के बाद ज़रूर कहीं ना कहीं लोग उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं उस चीज़ को। तो ज़रूरत है इस चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा खुद का क्या है। मैं जो बॉलीवुड है वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, सब कुछ है, बट मैं क्या हूँ वो मुझे अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं खुद को जानने की कोशिश करूँगा तो लोग मतलब अगर मैं फॉलो करूँगा किसी को तो मैं भीड़ में हो जाऊँगा। मेरी खासियत क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे बहुत सारे एक्टर्स जब हमारी बात भी होती है तो मैं ये बोलता हूँ यार मैं आपको तभी देखूँगा जब आपका कुछ खास ओरिजिनल आपका खुद का होगा। अगर आप फॉलो करके आ रहे हैं किसी को, स्टार्स को, तो मैं क्यों देखूँ, तो ऑलरेडी है ही, वो तो मैं देख सकता हूँ। तो खुद पे इस बात का यकीन हो गया था। और उसके बाद एक सतत यात्रा है खास तरह के सिनेमा की। मतलब ये कभी नहीं रहा कि अब नवाज इसी तरह की फिल्म करेंगे या इसी तरह के कथानक या इसी तरह के चरित्र पर काम करेंगे।
बहुत बहुत तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अगर अनुराग कश्यप के साथ काम किया तो सुधीर मिश्रा के साथ भी काम किया। अगर मतलब जो एक पूरी सतत यात्रा ही इतनी लंबी, इमरान खान के साथ भी काम किया। हाँ, और ये कोई नहीं सोच सकता था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कमर्शियल सिनेमा करे, वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा जो जहाँ आपने लोगों को हंसाया, खूब हंसाया। एक बार मुझे राजनाथ विद्यालय के स्टूडेंट ने कहा कि नवाज भाई कॉमेडी भी कर लेते हैं। बाप रे बाप, क्या कॉमेडी करते हैं वो। तो ये भी वही डब्बा है, वही बॉक्स है क्या नवाज, कि आप अगर गंभीर एक्टर हैं और गंभीर कथानक या गंभीर चरित्रों को करते हैं तो फिर आप वो नहीं कर सकते जिन्हें हम लाइट रोल्स कहते हैं। नहीं, मैंने तो आपको भी पता है एनएसजी में मैंने और राजपाल यादव ने हमने सबसे ज्यादा कॉमेडी रोल किए। बिल्कुल। मेरा चेहरा थोड़ा सा इंटेंस था, मुझे इंटेंस रोल मिलते चले गए, उसको कॉमेडियन हो गया वो। आई थिंक चेहरे हमारे यहाँ एक होता है, सेट होता है कि ये ऐसा दिखता है तो उसको ऐसे रोल दो, वो है थोड़ा हद तक है। हालांकि मैंने 2-3 फिल्में भी की हैं जो कॉमेडी थी, जिसमें कॉमेडी थी। और टाइमिंग कहते हैं ना कि टाइमिंग, कॉमेडी में टाइमिंग की ज़रूरत है, ऐसा बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ये। ट्रेजेडी में भी टाइमिंग की ज़रूरत होती है, और रियल लाइफ में जब बात करते हैं उसमें भी टाइमिंग की ज़रूरत होती है। गलत टाइम, आप कभी कभी किसी से इरिटेट हो जाते हैं ना, यार इसकी बात में ना इरिटेट कर रहा है, इट मीन्स उसके पास रिदम नहीं है ना टाइमिंग है। तो जैसे कारण जी कहा करते थे कि हमारे टीचर थे, वो कहते हैं हाँ बेबी कारण, कि बेसुरा माफ है बेताला नहीं। तो ताल और ताल की टाइमिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। तो इस तरह के सिनेमा को करते करते एक नया मीडियम सडनली आया, जिसके बारे में अभी शुरू में आपने चर्चा की, OTT। और जब नेटफ्लिक्स इंडिया में, जब भारतवर्ष में और विश्व में जब उसका लॉन्च हुआ, तो एक सीरीज बनी सेक्रेड गेम्स, जिसे एक रात में 30 सेकंड में 127 देशों ने देखा। तो अभी तक हम इस जूझ में, इस चीज से जूझ रहे थे कि हम इंडियन सिनेमा को ग्लोबल कैसे बनाएं, और यहाँ एक सीरीज और गाय तोंडे और एक किताब जो पब्लिक स्पेस में थी 10 साल से, 1 दशक से, वो आई, उद्धृत हुई, और आप वहाँ थे और 127 देशों ने आपको एकदम एक साथ देखा। उस यात्रा के बारे में जरूर हमारे साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। आई थिंक सीक्रेट गेम जब मुझे बोला गया कि एक सीरीज है, मैं सीरीज रिलीज नहीं करता हूँ। मैं पहले मेरा रिएक्शन यही था कि मैं सीरीज नहीं करूँगा। मुझे लगा था टीवी सीरियल टाइप होता, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था OTT क्या होता है, नेटफ्लिक्स क्या है। तो विक्रम मोटवानी मुझे बताया कि ये 120, 127, 190 कंट्री में रिलीज होगा। तो मुझे कोई खास ऐसे इंटरेस्ट बना नहीं मेरा, मुझे लगा कि अल्टीमेटली टीवी सीरियल ही है ये। मैंने कहा बच के तो मैं फिल्में कर रहा हूँ, फिर वापस मुझे नहीं ले जाना चाहते हो आप। तो एनीवे अनुराग ने मुझे कन्विंस किया और कि ये 190 कंट्री में जाएगा। नहीं कैसे जाएगा, तो उसने मुझे कोई मैप दिखाया, कोई सीरीज चल रही होगी कोई विदेश की, तो उसने बोला ये जहाँ लाइट जली हुई है ना मैप पे, यहाँ ये सीरीज चल रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने यार 190 कंट्री में तो अच्छी बात है, गुड। तो तब मैं एग्री किया मैंने उसको। लेकिन जब लोगों ने सेक्रेड गेम्स में एक तो आपकी आवाज भी सुनी और फिर आपको देखा भी, उन्होंने कहा कि ये तो बातचीत कर रहे हैं। कई सारे एक्टर्स ने कहा जब हम नवाज के सामने खड़े होकर डायलॉग बोलते हैं तो जब वो बोलते हैं तो हम कहते हैं मतलब ये बातचीत कर रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा भी कि ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल जो है जिसके लिए आप आज परिभाषित होते हैं, यू आर डिफाइंड बाय दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, व्हाट इज दैट, और वो करने में कौन सी वो जर्नी है जो which makes it so easy। जैसे कि आप में बातचीत कर रहे हैं तो हम स्क्रीन पे भी बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बारे में आई थिंक वही थोड़ा सा डिस्कशन करते। हम लोगों की अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो डिस्कशन करते हैं, आपस में बातें करते हैं कि और अपडेट होते हैं वर्ल्ड सिनेमा से क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या। तो उसी का नतीजा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास का जो सर्किल है ना, आपके दोस्त यार भी बहुत ही अपडेट होने चाहिए उस फील्ड में जिसमें आप ट्राई कर रहे हैं या जिसमें हैं आप।
बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि ये फिल्मी लोगों से मैं मतलब ये नॉर्मल लाइफ मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ नॉर्मल लाइफ, यार ये भाई बहुत हो गया एक्टिंग वैक्टिंग। नहीं भाई, हमारी लाइफ ये है, मुझे इसी में मज़ा आता है, यही मेरी ट्रैवलिंग है, यही मेरे लिए विपासना, सब कुछ यही है। मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ मेरा सब कुछ, तब मुझे वो खुशी होती है। मैं नॉर्मल ब्रीदिंग एक्चुअली तभी लेता हूँ जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ। तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वेलनेस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि ये मेरा सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर है जब मैं शूट करता हूँ। क्योंकि मेरा फोकस, मेरी कंसंट्रेशन एकदम बन जाती है, मैं नॉर्मल ब्रीदिंग करता हूँ। तो एनीवे उसी डिस्कशन का नतीजा ये है कि हम लोग यार कि पूरी पिक्चर में कोई एक सीन होता है जो फिल्म का एक पूरा जोश होता है, और एक्टिंग में भी वही है। सपोज में एक पेज मुझे डायलॉग्स दिए गए, कोई एक लाइन होती है जहां वो टर्निंग पॉइंट होता है वो आपके कैरेक्टराइजेशन का। अब सारे इस पूरे डायलॉग्स में मैं एक्टिंग करूंगा ना, सारे डायलॉग्स में अगर मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा, तो जब अच्छी एक्टिंग करने का वक्त आएगा तब क्या करूंगा। इसलिए पहले तो जो है स्टोरी को लेके चले। अब वहां पे भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी तो जहां जरूरत है, एक्चुअली जरूरत है, वहां डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपके लिए, वहां आप अपने से मतलब आगे नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है कि ऐसा लगना चाहिए बातचीत कर रहे हैं जैसे इंसान है। आप इंसान हैं, आप कोई मतलब उल्टा तीर लेके नहीं आए, ये सरिया नहीं घुसड़ के आए पीछे कि आज मैं फाड़ दूंगा, मतलब ये कर दूंगा। नॉर्मल बात कर, फाड़ने का वक्त आएगा जहाँ पे भी होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैरेक्टर का, वहाँ पे आएगा, वहाँ करना। अभी फिलहाल नॉर्मल कर सारी चीजें। दो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स, ठाकरे और मंटो। मतलब बहुत जिगर चाहिए ये करने के लिए ना। एक तरफ सादत अली हसन मंटो, दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे। ये तो बताना पड़ेगा आज रहस्य कि ये दोनों एक साथ आसपास में कैसे जीवन पाया इन्होंने। आई थिंक आसपास ही हो रही थी शूटिंग दोनों। बिल्कुल। हाँ, तो हालांकि मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, ये रोल क्यों कर रहे हो, कुछ लोग इस तरह की चीजें हुई थी मेरे साथ। मैंने कहा मैं यार एक्टर हूँ, मुझे कल को अगर हिटलर का रोल मिलेगा तो वो भी करूँगा मैं, है ना। और मंटो की खास बात थी कि मंटो में मैंने कुछ कैरेक्टराइजेशन किया है, क्योंकि मंटो की वीडियोस किसी ने नहीं देखी थी, मंटो का सिर्फ फोटोज हैं। तो एक एडवांटेज मुझे उस चीज़ का मिला कि मुझे लगा कि जो स्क्रिप्ट है और एक मैं हूँ, अगर मैं ही मंटो हूँ तो नवाज ही मंटो है कि किसी ने नहीं देखा, लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ, अगर मैं ऑनेस्ट रहा अपने रोल के साथ तो लोग यकीन कर लेंगे मंटो ऐसे रहा होगा। लेकिन ठाकरे के साथ थोड़ा डिफिकल्टीज थी, क्योंकि उनके वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं, उनकी स्पीचेस हैं, उनके इंटरव्यूज़ बहुत हैं गूगल पे। तो अब ये था कि मिमिक्री भी ना हो कैरेक्टर का, लगे भी ठाकरे। ये सबसे ज़्यादा चैलेंज था उस कैरेक्टर के लिए, उस रोल के लिए। पर दोनों के चित्रांकन में और दोनों को देखकर हमारे एक ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नवाज भाई मंटो भी हो सकते हैं और ठाकरे भी। ये अपने आप में आई थिंक दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द एक्टर दैट इज नवाजुद्दीन। आई थिंक उसने मुझे करीब से देखा नहीं, जो मुझे करीब से जानते हैं उनको बोलते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है नवाज के साथ। नवाज उसने आपको इतना देखा ना कि अपने अंदर उसने बिठा ही लिया। आप मेरे साथ रहा होगा कि मुझे देखा नहीं होगा उसने। आपने अभी एक फिल्म जिसमें आप ट्रिपलेट हैं मतलब 3 रोल्स में हैं और उनमें से एक नारी चरित्र है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी फोटो देखी, सच में नवाज अगर आपका नीचे नाम नहीं लिखा होता मैं तो नहीं पहचान पाती। मैंने आज उसका यहाँ पर इसलिए चित्रण नहीं किया कि आप अपने आप आज सेशन के बाद गूगल सर्च करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हड्डी, तो थोड़ा हड्डी की यात्रा और फिर उसके बाद एक और फिल्म अभी आपने खत्म की है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं अगर मैं नाम ना लिखा होता मैं पहचान नहीं पाती, तो ये क्रेडिट जो है मेकअप आर्टिस्ट हो जाता है, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कितने घंटे लगते थे? 3 घंटे। रही बात ये कि जो मेकअप उसने किया उसको रिस्पेक्ट देना जो
क्योंकि उसने 3 घंटे लगाए और सोचा है कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखेगा या नहीं, बट उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि उस मेकअप को मैं कितना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि एक अलग पर्सनैलिटी उसने खड़ी कर दी। अब उस पर्सनैलिटी में सोल, ये अपना थॉट, अपने इमोशंस, ये मुझे डालने पड़ेंगे। कहने के लिए तो ट्रांसजेंडर है, बट वो इतना डिफिकल्ट रोल रहा मेरे लिए। आफ्टर ठाकरे ये एक सबसे डिफिकल्ट रोल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे उसको छू के चले जाऊं। जो उनका ट्रॉमा है उसको पकड़ना है, और मैंने खुद से फाइंड आउट किया, अपने अंदर फाइंड आउट किया कि क्योंकि हर इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है, एक औरत भी होती है, एक बच्चा भी होता है, एक खतरनाक कैंसर भी होता है, सब कुछ इंसान, अब एक इंसान। तो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मेरे अंदर किसी कोने में है, एक फीमेल है, तो मैंने कोशिश की कि मैं फीमेल का रोल, मैं फीमेल प्ले करूँ। लोगों को लगेगा ये ट्रांसजेंडर है, लेकिन मैंने एक्चुअली फीमेल प्ले करने की, क्योंकि जितने भी ट्रांससेक्सुअल होते हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है फीमेल बनने की, वो चाहते हैं वो। क्योंकि मैंने 80 के आसपास ट्रांसजेंडर्स लोगों के साथ काम कर रहा था मैं, तो उनकी सबसे बड़ी विश, सबसे बड़ी चाह उनकी क्या है, क्या होती है, ये मैंने सबसे पूछा। कॉमन बात यही थी कि सब फीमेल बनना चाहिए।